শুভেন্দুবাবু একটা চোর, রেজিস্টার্ড চোর, চিটিংবাজ, দল বদলু, বেইমান। ও ডাক্তার দেখাক, ভালো করে মাথা ধরা চিকিৎসা করাক। হ্যাঁ, একটা দল বদলু, ওর কোনো ঠিক ঠিকানা নেই। সিবিআইয়ের ভয়ে যখন সিবিআই এফআইআর করলো, তো সেইগুলো চলে গেল বিজেপিতে। মজুমদারের বাবার টাকা, বিজেপির বাবার টাকা। আমরা দেশবাসী, আমরা মনে করি আমাদের দেশবাসী কেন্দ্রীয় হোক রাজ্য সরকার হোক, আমরা ট্যাক্স দিই আমাদের টাকা। शनिवार को राजा बाजार मोड़ पर ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के यूथ की तरफ से मनरेगा के फंड को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। आपको बता दें, 1,15,000 करोड़ मनरेगा फंड का सेंटर पर बकाया है, जिसका विरोध में बहुत सारे लोग प्रदर्शन पर देखे गए, जहां पर आसपास के सभी इलाकों के काउंसिलर भी मौजूद रहे। साथ ही साथ राज्य के हेवीवेट मंत्री शशि पांचा और साथ ही साथ तृणमूल कांग्रेस के स्पोक पर्सन कुणाल घोष को भी देखा गया। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने क्या कहा। क्यों मारे गए? मार दिया गया। क्यों मार दिया गया? क्योंकि वो पॉलिटिकल किलिंग्स थे, पॉलिटिकल खून थे। क्योंकि वो कांग्रेस या तृणमूल कांग्रेस करते थे, तब ममता दीदी वहां थी। इसका बदला हम लोग लिए, इसका बदला हम लोग लिए। 50,000 खून, 50,000 जो लोग गुजर गए, 50,000 लोग तो थे जिन्होंने ये खून किया। ये 50,000 लोग पकड़े गए, इनसे बदला लिया गया। बोलिए, तो फिर क्या बोलते हैं भाजपा? आज आके आप गलत यहाँ संख्या देते हैं, गलत आरोप लगते हैं। और इसलिए आप लोग पहले तो तय कर लीजिए, जब भी भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता बोलता है ना, किताब लेके बैठ जाइएगा। संख्या भूल, वक्तव्य भूल, इतिहास भूल, भूगोल भूल, सब कुछ भूल होता है। किताब लेके, बच्चों की किताब होती है ना, भूगोल का, इतिहास का किताब लेके बैठ जाइए, मिलाइएगा। इतना झूठ बोलते हैं, पहले से अंत तक वो झूठ बोलते हैं। और ये झूठा सरकार हमको नहीं चाहिए। ये बदलाव जो दिल्ली में होना है, इस झूठे सरकार, इस जुमला सरकार को बदलना है। इन दो बातों को रखते हुए लड़ाई हमारी जारी रहेगी, रहेगी तो हमारी लड़ाई जारी। 100 दिन का हमारा पैसा हमको मिलना चाहिए, गरीबों का घर बनना चाहिए, पेट्रोल डीजल और गैस का दाम कमना चाहिए, हमारी नौकरियां हमें मिलनी चाहिए, रेलवे एक्सीडेंट बंद होना चाहिए, रेलवे के जो मृत्यु हो रहे हैं ये सब बंद होना चाहिए, इंडिया क्रिकेट टीम को जीतना चाहिए, जीतना चाहिए कि नहीं? और अपने नाम पे स्टेडियम नहीं बनना चाहिए। हम जी रहे हैं, हम जीवित हैं, और हमारे नाम पे सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टेडियम का नाम बदल के, सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम बदल के किसने अपने नाम पे स्टेडियम का? वाह रे वाह, इतिहास इस तरीके से रचेंगे आप, वाह रे वाह। इसलिए सावधान रहिए इन दो बातों को रखते हुए। आपने एकदम धैर्य समेत सुना हमारे वक्तव्यों को, आप सभी को मैं धन्यवाद देती हूँ। বাংলায় উন্নয়ন চলছে, আর দিল্লির সরকার সেই উন্নয়নটা চায় না বলে বাংলাকে বঞ্চিত করছে, বৈষম্য, প্রতিহিংসা, সিবিআই, ইডি এইসব করে বেড়াচ্ছে। তো সেই জন্যই তার বিরুদ্ধে আন্দোলন। বকেয়া দিতে হবে, আর তার পাশাপাশি দলিতদের, আদিবাসীদের যেভাবে অপমান করছে বিজেপি, তার প্রতিবাদ। কোনটা? ওটা তো ওগুলো করে, ওরা তো রুটি কাপড়ার মাখানে পাল্লা দিতে পারে না, মানুষকে ধর্মের ভিত্তিতে ভাগাভাগির চেষ্টা করে, ধর্ম নিয়ে কাজ করে। আমরা সেটা করি না, আমরা রুটি কাপড়ার মাখানের রাজনীতি করি। আজ শুভেন্দুবাবু গতকাল, হ্যাঁ, আচ্ছা, এত ভেবেচিন্তে করে না, এত ভেবেচিন্তে করে না, এগুলোর ইতিহাস ভূগোল জিজ্ঞেস করলেও বলতে পারবে না। ফলে এটা করছে মানসিক অবসাদ থেকে। এই যে সুপার ফ্লপ হয়েছে অমিত শাহের সভাটা, সেটা থেকে নজর ঘোরাতে এই করি ওই করি সেই করি, সব পাগলদের দেখেছেন রাস্তায় এদিকে কাগজ কুচোয়, একটু বাদে গিয়ে জল ঢালে, ওরকম পাগলামি সব করছে। একটা লাস্ট প্রশ্ন, টাকা না দিলে তো প্রতিবাদ হবেই। সেটা যদি ওরা মনে করে ক্যাম্পেন, তো ক্যাম্পেন। টাকা যদি না দেয়, ন্যায্য টাকা, বাংলা থেকে তুমি ট্যাক্স তুলে নিয়ে যাচ্ছ, আর বাংলা টাকা দেবে না, তো কাল খাবে না। শুভেন্দুবাবুকে কি বার্তা দেবেন এইখান থেকে? শুভেন্দুবাবুকে কী বার্তা দেবো? শুভেন্দুবাবু একটা চোর, রেজিস্টার্ড চোর, চিটিংবাজ, দল বদলু, বেইমান। ও ডাক্তার দেখাক, ভালো করে মাথা ধরা চিকিৎসা করাক। হ্যাঁ, একটা দল বদলু, ওর কোনো ঠিক ঠিকানা নেই। সিবিআইয়ের ভয়ে যখন সিবিআই এফআইআর করলো, তো সেইগুলো চলে গেল বিজেপিতে। ওকে তো চোর বিজেপি বলেছিল, তৃণমূল তো চোর বলতেই যায়নি। তো প্রথম তো বিজেপি বলেছে, বিজেপি ওর ভিডিও ফুটেজ দেখিয়েছে। তো তারপরে ও অমিত শাহের জুতো চাটতে গেছে ওখানে।
তো ওর মেরুদণ্ড নেই, তো ফলে ও ওইরকমই ওর কাজ। একটা লাস্ট প্রশ্ন, নানান ধরনের আরে ইডি সিবিআই এমন বাড়িতে সিবিআই গতকাল গেছে, বেরোবার সময় সিজার লিস্ট নীল দেখিয়ে দিয়ে গেছে, ফলে অমিত শাহের সভা ফ্লপ করে যায়, বিজেপি ভোটে হেরে যায়, সেই জন্য উস্কাতে গিয়ে এইসব করে ফেলে। এই আন্দোলনটা কোথায় গিয়ে শেষ হবে মানরেগা? তৃণমূলের জয়, মানুষের টাকা পাওয়া, কেন্দ্রে সরকার বদল এবং বাংলার আরও উন্নয়ন। ধন্যবাদ। वो पैसा भी जो है मोदी सरकार ने बंद कर रखे रखा है। आप जानते हैं 2021 में अब की बार 200 पार का नारा देकर मगरबी बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री 26 बार मगरबी बंगाल आए। इतिहास के पन्ने में, तारीख के पन्ने में पहला वजीर आजम है जो 26 बार चुनाव के लिए एक रियासत में आया है। ये पहला प्राइम मिनिस्टर है। लेकिन और 2.5 साल से तो अमित शाह, नड्डा साहब जो है बहुत गड्ढा किए यहाँ पर बंगाल में आकर के। 2021 में 2.5 साल के अंदर में नड्डा साहब गड्ढा करते गए और अमित शाह जी जो है, हम लोग जिसको बोलते हैं डेली पैसेंजरी, रोज आना जाना करते थे। लेकिन 2021 में नड्डा जितना भी गड्ढा किए और मोदी ने जितनी भी साजिश की और अमित शाह ने जितना भी डेली पैसेंजरी किया, उनको जो है नाकामी का हाथ लगी। उसके बाद वो कहते हैं ना, एक मुहावरा है ना कि तुमको अगर हम मारना चाहते हैं, बस मारना चाहते हैं, तो तुमको हम भात से भी मारेंगे और लाश से भी मारेंगे। तो आज जब सियासी तौर पर शिकस्त हुई है भारतीय जनता पार्टी की, जब उनके सपने साकार नहीं हुए बंगाल में, जब 11 करोड़ बंगाल के लोगों ने 2021 के चुनाव में ये साबित कर दिया कि ममता मई है बंगाल और ममता बनर्जी छोड़कर मगरबी बंगाल की जनता किसी के साथ नहीं है, यहाँ की जनता साथ है ममता के। तो उसके बाद जो है 2.5 सालों से अब हमें भात से मारा जा रहा है। हमारे यहाँ जो मेहनत, वो कहते हैं ना कि भाई मजदूरों का पसीना गिरने से पहले उसकी उजरत दे देनी चाहिए, सब लोग ये बात कहते हैं। इस्लाम भी ये बात कहता है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तमाम लोगों को हिदायत की कि मजदूरों का पसीना सूखने से पहले उसकी उजरत दे देनी चाहिए। और ये दुनिया भी तस्लीम करती है कि मजदूर का जो है पसीना सूखने से पहले उसकी उजरत दे देनी चाहिए। आज हमारे मगरबी बंगाल में 22 लाख जो ग्रामीण जो मजदूर हैं, जिन्होंने मजदूरी किया है, उनका पैसा, सड़क का पैसा, बेवा का पैसा, मैं आपको कितना दास्तान बताऊं, तकरीबन 1,15,000 करोड़ रुपया जो है केंद्रीय सरकार 2.5 साल से नहीं दे रहा है। अभिषेक बनर्जी के क़यादत में दिल्ली गए और फिर दिल्ली में क्या हुआ आपने देखा, क्या जुल्म, क्या सितम और क्या तानाशाही हुई। उसके बाद मगरबी बंगाल में आकर गवर्नर साहब के सामने, उनके गवर्नर हाउस के सामने लगातार 5 रोज जो है हमारे रहनुमा अभिषेक बनर्जी की क़यादत में जो है एहतजाजी प्रोग्राम या धरना का प्रोग्राम चला। गवर्नर साहब के अपील पर कि मैं मामला देख रहा हूँ, मैं दिल्ली में बात करता हूँ, उनके गुजारिश पर धरना को मुलतवी कर दिया गया, रोक दिया गया, लेकिन इन शर्तों पर कि अगर 1,15,000 करोड़ रुपया नहीं दिया गया तो आंदोलन फिर शुरू होगा ममता बनर्जी के क़यादत में। और इंडोर स्टेडियम में ममता बनर्जी के क़यादत में 1,15,000 करोड़ रुपया की अदायगी और नरेंद्र मोदी को मजबूर करके उनको रास्ता में लाने के लिए रास्ता में उतरने का जो कसम हम लोगों ने खाया है। आज का जो जलसा तृणमूल यूथ कांग्रेस के सदर मोहतरम शांति रंजन कुंडू जो आज यहाँ मीटिंग बुलाए, उसका मकसद ही यही था। हम आप लोगों को कहना चाहते हैं, आइए मगरबी बंगाल की फलाह बहबूद के लिए, मगरबी बंगाल के 22 लाख लोग जो महरूम हो गए हैं, उनको उनका हक दिलाने के लिए हम बार बार एक बात कहते हैं, केंद्रीय सरकार जो पैसा देती है वो भीख नहीं है, वो हमारा हक है। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको दे सकता हूँ कि हर साल मरकजी सरकार जीएसटी के माध्यम से, पिछले साल अशफाक साहब रिकॉर्ड देख लीजिएगा आप, আপনারা देखें नेबेन, 2.25 লক্ষ কোটি টাকা এখান থেকে তুলে নিয়ে গেছে प्रत्येक साल 1.5 लाख से लेकर 2 लाख करोड़ रुपया हर साल यहाँ से जीएसटी के माध्यम से हमारे और आपसे टैक्स वसूल करती है केंद्रीय सरकार। और वहाँ से हमें कुछ पैसा मिलता है जो राज्य सरकार का अधिकार है, जो हमारा हक है। अनेक समय मने হয় আপনাদেরও মনে হয় বা শুভেন্দু অধিকারীর বাবার পয়সা। আপনি বলুন, ভাবুন একটু, আমাদের দেশে, আমাদের একটা রাজ্যের 11 কোটি মানুষ দেখছে, কিন্তু লোকসভা নির্বাচনে বুঝিয়ে দেবে, কিন্তু বলছে কি শুভেন্দু অধিকারী বাবু বলছেন কি, বলছেন যদি সুকান্ত মজুমদার ফোন করেন তাহলে টাকা চলে আসিব। ভাবুন তো, সুকান্ত মজুমদারের বাবার টাকা, বিজেপির বাবার টাকা। আমরা দেশবাসী, আমরা মনে করি আমাদের দেশবাসী কেন্দ্রীয় হোক রাজ্য সরকার হোক, আমরা ট্যাক্স দিই, আমাদের টাকা गरीब मानुष पावे ना, मने होच्छे तादेर टाका। मैं यही बात कहना चाहता हूँ कि 1,15,000 करोड़ रुपया देना पड़ेगा, हर हालत में देना पड़ेगा। और इसके लिए हम लोग आंदोलन संग्राम कर रहे हैं। आज हर जगह में, पूरे बंगाल में लड़ाई हुई है और मैं दिल की गहराई से यहाँ पर नॉर्थ कैलकाटा तृणमूल यूथ कांग्रेस के सदर शांति रंजन कुंडू और तृणमूल यूथ कांग्रेस को अभिनंदन देता हूँ। बहुत शानदार यहाँ पर मीटिंग का आयोजन किया है। अगर आपने को प्रश्न थाकले बोलते पारें।